رسوله النبي الأمين المكين حليم الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک بار حدیث درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ سورہ یاسین شریف کی یہ آخری آیت ہے۔ ایسے کتنے ہی مقامات ہیں جہاں اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اور سب کچھ میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ لوٹنے کے کا جملہ کئی جگہوں پر ہے اور حضرت نے موضوع سخن بنایا ہے، وہ ایک مشہور کلیئر کٹ وہاں بات کر دی۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا، اگر میں کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں ان یقول، تو کہتا ہوں کن، ہو جا، تو فیکون، ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدیہ ملکوت، جنی دنیا میں بادشاہت ہے، زمین و آسمان سے لے کر ہر چیز وہ میری بادشاہت میں ہے، میری ملکیت میں ہے۔ فسبحان الذی بیدیہ ملکوت، ید من ہاتھ ہوتا ہے، بیدیہ الملکوت، یہ ساری چیزیں ملکوت میرے ہاتھ میں ہے۔ کل شیء الیہ ترجعون، ہر چیز میری ہی طرف لوٹ کے چلی آئے گی، ہر چیز میری طرف لوٹ کے چلی آئے گی۔ تو یہ رجوع کی بات کئی جگہ پر قرآن شریف پڑھنے پر نظر آتی ہے۔ تو معاملہ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ نے جب اپنے محبوب کا نور اپنے نور سے پیدا کیا اور اپنے محبوب کے نور سے ساری کائنات کو رچا بسایا، ساری ارواحیں پیدا ہوئیں، روح اجر امر ہے ہندی کے مطابق بھی اور ہمارے یہاں بھی، اس کو موت نہیں آتی۔ جب یہاں ہم لوگ نہیں پیدا ہوئے تھے تو کہیں تو تھے، ہماری روح کہیں تو تھی۔ جتنے ہم لوگ یہاں ہیں جس عمر کے بھی، تو ہم لوگ جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو جسم سے ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن روح کہیں نہ کہیں تھی۔ تو ہم لوگ بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے ماں باپ کے ذریعے سے دنیا میں آئے تو وہ جسم ملا، وہ ایک لباس پہنایا گیا اس روح کو، اور وہ لباس بچپن سے لے کے اس عمر تک پہنچا جس عمر میں وہ گیا، تو وہ ایک لباس ہے جو پہنایا گیا ہے روح کو، ٹھیک ہے۔ وہ لباس روپی روح یہاں سے کہیں اور چلی گئی۔ جسم مٹتا ہے، روح نہیں مٹتی ہے، یاد ہے۔ اور روح کا اس جسم سے واسطہ سور پھونکنے تک قائم رہے گا، بلکہ اس کے بعد ہی۔ اور وہیں سے وہ روح، اور ایک اور بایولوجیکل چیز بتاتے ہیں سائنٹیفک، انبیاء والصلاۃ کی روحیں جسم، اولیاء اللہ کے جسم، شہداء اعظام کے جسم، بڑے بڑے اکابر اولیاء صلحاء کے جسم کو زمین نہیں کھاتی، وہ جیوں کے تیوں رہتے ہیں۔ بعد جسم ان کے روح کا تعلق وہاں برقرار رہتا ہے۔ عام انسان کے جسم کا وجود جس حال میں چلا جائے، اب اسی جسم میں سائنس کے مطابق ریڑھ کی ہڈی میں ایک ایسی ہڈی ہے، ایک ایسا عضو ہے جو قیامت تک نہیں سڑتا ہے اور گلتا ہے، وہ رہتا ہے۔ یہ آپ کو سائنٹیفک بات بھی بتا رہے ہیں، دین سے بھی بتا رہے ہیں۔ تو جب اللہ کن کہے گا، پھر سے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے پہلی بار، تو دنیا فنا ہو جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا ہو جائے گا۔ اور قیامت پر بہت ساری صورتیں ہیں، سورہ انشقاق، اذا السماء انشقت، سورہ تکویر، اذا الشمس کورت واذا النفوس زوجت۔ تو قیامت پھونکے گی، سور پھونکیں گے، سب ترہم برہم ہو جائے گا۔ اب دنیا اسی طرح پڑی رہے گی، مدتہا، ذات الہیہ جانتی ہے کہ کب تک پڑی رہے گی، لیکن جب وہ قائم کرے گا تو ڈبل جو سور پھونکیں گے وہیں سے وہ روح نکلے گی۔ ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے۔ جمشید پور میں
कब्रिस्तान की पलटैया होती है। अभी मेरी मामी का इंतकाल हुआ है, जुमरात को उनका 40वां है। तो जिस कब्र में मेरी नानी दफन की गई थी, 20 साल बाद उनके बेटा मेरे छोटे मामू दफन किए गए। इसके आफाक से मेरी छोटी मामी भी उसी कब्र में दफन की गई। अभी की बात कर रहा हूँ, 40 दिन पहले अभी की। तो एक कब्र से 70 मुर्दे निकलेंगे। वही अंश है जो अल्लाह कहेगा कुन हो जा, तो सब फयकुन हो जाएंगे। अब हश्र की मैदान की तरफ दौड़ना शुरू होगा। आई समझ में बात? तो रूह नहीं मिटती है, जिस्म का जो भी हो जाए। अब जिस्म को ही बरकरार रखने के लिए उस दर्जे को पहुंचना भी पड़ता है। हाफिज कुरान अल्लाह की बरकत से उनका जिस्म नहीं सड़ता है। बड़े बड़े काबिल औलिया शोहदा, ये जस के आप सुने होंगे कि फला जगह नहर बन रही थी, फला जगह ही हो रहा था। बहुत से मुस्लिम ममालिक में जस के तस कफन समेत निकला और चेहरा लोग देख रहे हैं जैसे अभी इनको किया गया है। ऐसे बहुत से व्हाट्सएप में भी आज के दौर में भी मैसेज मिल जा रहा है। तो रूह पहले भी थी, अभी भी है और कल भी होगी, और वो खाकी लिबास उसको पहना के फिर से हिसाब किताब होगा। तो ये बात है इंतकाल का। मुंतकिल हो गए, वहां से वहां चले गए, जगह बदली है, आदमी वो वहां पर वही है। इसीलिए 40 दिन तक आना, जुमरात की शबों में आना, सोमवार की शबों में आना, ये सब अपनी जगह पर जारी रहेंगे। मैं चंद वाकयात बयान करके बात को समेट दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक बार इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं अल्लाह के, चारों के 4 काम हैं। सैयदना जिब्रील अमीन अंबिया व सलात पर वही लाने का काम करते थे। अब मेरे आका के आने के पर्दा करने के बाद जिब्रील अमीन किसी नबी पर तो अब नहीं आएंगे। हाँ, हुजूर ने पूछा था कि भाई जिब्रील मेरे जाने के बाद भी फिर आप आएंगे? कहा कि हाँ हुजूर मैं आऊँगा। 10 बार दुनिया में हुजूर तशरीफ लाएंगे। किस किस मौके से वो पूरा डिटेल बताया गया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम है अंबिया व सलात पर वही का लाना। मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश के मालिक हैं, वो बारिश जितनी होती है उनके ऑर्डर में। और इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने का काम करते हैं, उनके साथ जितने फरिश्ते हैं। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, तो आपने कहा कि इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप रूह निकालते हैं तो किस तरह निकालते हैं, क्या मामला है, आपकी शक्ल क्या होती है? तो कहा कि हुजूर जब मैं किसी गुनहगार बदकार निहायत पापी इंसान के पास जाता हूँ तो मेरी शक्ल निहायत खतरनाक होती है। वो बयान से बाहर है कि मैं अपनी शक्ल कैसी बनाता हूँ। तो बहुत से भूत प्रेत का शक्ल आप लोग देखे होंगे कि 2 सिंह निकला है, बड़का दांत निकला है, बाल बड़ा बड़ा है, चेहरा एकदम काला है। तो आप तसव्वुर कर लें, हो सकता है उस तरह उससे भी खतरनाक तस्वीर हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमन्ना किया कि आप हमको वो तस्वीर दिखलाइए जिस गुनाहगारों के जब रूह निकालते हैं तो वो जो तस्वीर आप होती वो देखेंगे हम। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप नहीं देख सकेंगे हुजूर। कहा कि चलिए दिखाइए तो सही, तो चूंकि नबी हैं, खलीलुल्लाह, उनकी बात टाली नहीं जा सकती है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुजूर आप अपना चेहरा थोड़ा देर के लिए उधर घुमा लीजिए। जैसे ऐसे खड़े हैं तो हुजूर ने अपने मुंह को ऐसे घुमा लिया। अब इन्होंने अपनी शक्ल बदल ली, वो डेंजरस वाली, गुनहगार के पास जाने वाली, सिहकार बदकारों काफिरों जिंदगियों की रूह निकालने वाली। जब वैसा बना लिए तो हुजूर को कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मेरी तरफ देखें, आप पलटे। तो जब हुजूर जैसी पलटे, जैसी देखे, ऐसा घसी तारी हुआ, बेहोशी के आलम के आधा गिरे थे। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने संभाला और अपनी शक्ल को बदला। कहा हुजूर हमने कहा ना था आप मेरी शक्ल नहीं देख पाए। जब इब्राहिम खलीलुल्लाह वो शक्ल नहीं देख सके तो अगर हमारी बदकारियां जारी रहीं तो वही चेहरा कहीं सामने आया तो क्या असर होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जन्नत जहन्नुम में जाने तो बात की चीज़ है, आपका ये चेहरा ही इतना डरावना है कि यही काफ़ी है बदकारों के। ये है इज़राइल अलैहिस्सलाम की शख्सियत। फिर हुजूर ने तमन्ना किया कि अच्छा तो किसी नेक बंदे की रूह निकालने के वक्त आपकी क्या तस्वीर होती है, वो हसीन और जमील तस्वीर हमको आप देखना है। फिर हुजूर ने कहा कि ठीक है आप मुंह उधर करें। हुजूर ने अपनी शक्ल बदली, कहा कि आप इधर देखिए मेरी तरफ।
वो पुरनूर चेहरा, वो रूहानियत जो बयान से बाहर है। कहा कि ये रुखे देख लेना ही कमाल है, जन्नत की कौन तमन्ना करेगा जब आप ऐसी तस्वीर लेकर सामने आए। तो हमको ऐसी तस्वीर की तमन्ना वाली अमल करना है, ना कि वो करना है। एक बार दुरूद सलाम पढ़े तो मूसा अलैहि सलाम का वाकया बयान करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला सल्लल्लाहु अलैहि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व बारिक अला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। सलाम के बाद तबीयत पढ़ सकते हैं। मूसा अलैहि सलाम ने के पास जब इस्राइल अलैहि सलाम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि हम भेजे गए हैं, आपको दुनिया से ले चल रहा है। तो मूसा अलैहि सलाम बड़े जलाली नबी हैं, उन्होंने आओ ना देखा ताओ इस्राइल अलैहि सलाम को एक टमाटर खींच के मारा। मूसा अलैहि सलाम ने इस्राइल अलैहि सलाम जो मलकुल मौत के फरिश्ते हैं उनको यहाँ गाल पर मारा, इतना जमा की तरह चाह कि उनकी आंख निकल के ऐसे लटक गई और अपने आंख को ऐसे लिए हुए पहुंचे अर्श बरी के पास सिदरतुल मुंतहा। कहा क्या हुआ? कहा ऐसा ऐसा बात हुआ। मूसा अलैहि सलाम तवक्क मुकम्मल था, हमको तो जो हुक्म है हम अपना गए हैं। तो कहा ठीक है जाओ। अपने आंख को ऐसे फिर रखा, फिर आए। कहा फिर आ गए। कहा कि हुजूर यही हुक्म है हमको, आप क्या चाहते उनसे पूछो। एक बैल जा रहा था, मूसा से पूछो कितना रहना चाहते हैं। तो कहा कि हम इस बैल के ऊपर हाथ आप रख दिए। कहा कि इसके जितना बाल हमारे हाथ में आया हम उतने बरस और रहे। तो कहा कि फिर उसके बाद फिर आएंगे आप? कहा कि हम एकदम आएंगे। तो कहा कि उसकी जरूरत क्या है, जब कल भी जाना है और आज भी जाना ही है, उतने बरस बाद ही फिर ऐबे करेंगे आप। तो अल्लाह से कौन दूर रह सकता है, चलो ले चलो इजराइल को अभी के नीचे से ठीक है। ये सारी बातें निचोड़ बतलाती हैं। जाना है सही है, लेकिन जाने में बेशक तकलीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम लोगों को ऐसे अमाल करना है जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए, अल्लाह के महबूब राजी हो जाए। और एक आखिरी बात, अल्लाह के महबूब से खुश अकीदगी हो। अभी जो कब्र में सवाल हुआ होगा, अभी नमाज हज ज़कात का नहीं होगा। इन मन रब्बों का मन दीनों का माँ कुंत तकुलू फी शान हाज़िर। हमको तैयारी करनी है इस तीसरे सवाल की कि इनकी शान मुक़द्दसा में जब जुम जिंदा थे तो क्या अकीदा रखते थे। तो हमें अपने अल्लाह के महबूब से बेपनाह मोहब्बत का अकीदा रखना है, अल्लाह के महबूब बंदों से बेपनाह हुस्न अकीदत रखनी है। और वहाँ ये जवाब हमको देने के लायक बनना है कि इनके बारे में क्या पूछते हैं। यही तो शाहिदों वो शर्मज़ीरा हैं, यही तो वतवज़्ज़रूहु वतवक्किरूहु वतसब्बिहू बुक्रतन वसीला की शान वाले हैं। यही तो वरफ़अना लका ज़िक्रक हैं, यही अलम नशरा है, यही वद्दुहा इज़ा सजा है, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा इन्हीं के लिए है। यही ताहा है, यही यासीन है, यही मुज़म्मिल है, यही मुदस्सिर है। अलहाज़ा क़यास हमें अल्लाह के महबूब से खुश अकीदा जी पैदा करनी है। सबसे पहले अमल से पहले अपने अकीदे में अल्लाह ताला हम सब लोग सुनने से ज़्यादा चलने पर की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।